आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सरफेस का ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के लिए, स्पेशली द मेटल कोटिंग्स। और अगर ये मेटल कोटिंग पर प्रॉपरली प्री ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो जो फिनिशिंग है वो अप टू द मार्क नहीं आती है। तो ये टॉपिक आज का लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि बहुत टाइम हम ये भी देखते हैं कि हमारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स को बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आपके प्रोडक्ट में पिन होल है, आपके प्रोडक्ट में क्रैक्स आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में रिंकल बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में इट इज गोइंग टू पील ऑफ और समथिंग, मेनी थिंग्स। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ये टॉपिक मुझे लगता था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वी जस्ट रिक्वेस्टेड अनुराग कनौजिया जी, जो लास्ट टाइम हमारे साथ हमारे पाउडर कोटिंग के कॉन्क्लेव में एज अ स्पीकर थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी थी। और उसी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कुछ एडिशन करवाया फॉर लिक्विड एंड सीईडी कोटिंग। सो अनुराग कनौजिया इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आस्ट्रा कोटिंग लिमिटेड, हैज ओवर 30 years of experience in the trade. He is a talented sales strategist and pre-treatment chemical specialist. He had a challenging metal coating and pre-treatment career, offering solutions and consultancy to all major auto OEMs, auto ancillaries, gensets and electrical panel industry, metro and power projects. He has been trained in the USA, Japan, China, besides India, for various pre-treatment technologies and products for various applications. He is the one who has introduced sustainable green pre-treatment technologies in India, having more than 22 patents. This is very important thing कि हमारे अनुराग जी के पास 22 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। He is a dynamic, disciplined and focused professional, supporting many big companies with pre-treatment solutions and paint shop technology. और उसके अलावा भी he is a very humble person. मेरे साथ जब भी इनकी बात होती है तो we just talk like friends. Rather, he is a very big man. एक बहुत बड़ा एक एम्पायर चलाते हैं, बहुत अच्छा इनका एक टर्नओवर है, एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और हमारी रिक्वेस्ट पे आज इन्होंने ये टॉपिक हमारे साथ शेयर करना, और हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमारे पेंट विजन के परिवार के लोग हैं, उनके साथ ये टॉपिक शेयर करना शुरू किया है। ओवर टू यू अनुराग सर, प्लीज गो Okay, ऑन। sir. Manish ji, thank you so much for saying good words about me. And I really appreciate what you said. And it's been over 30 years of my experience gone into this field where I have serviced a lot of different industries with different kind of coatings, including intumescent paint, which are known as fire resistance paints. So we were the first company in India to do that for Delhi Metro about 15 years back, and I appreciate my team members who have been along all along with me and have been supporting all the customers. So Sanjeev is also here. I must say thank you to Sanjeev for being here for so many years, over 20 years now with me. And we are making a good progress in the industry. And last year we launched our cathode electrodeposition paints, pre-treatment chemicals, which are working at 40-degree temperature and very low sludge, very low sludge rather, and giving fantastic results in the long-term tests like salt spray. So if the customer requirement is 1,000 hours, it's reaching more than 1,500 hours. So these are various things which I will discuss today. So would you like me to start now, Manish, or should I wait? नहीं सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज आप। Okay. So Astra Coatings is now 26-year-old company. We are ISO 9001 certified, and we have brought a lot of new technologies into India, especially nanotechnologies, which are meant for aluminium, especially, and multi-metal also, where you can use almost 8 metals in one go, in one line. No need to change the bath
for like even for 1 year. So it is about Astra services and competition. Why pre-treatment? What is pre-treatment? Importance of quality pre-treatment, advantages of pre-treatment, what is pre-treatment process, introduction to Astra pre-treatment chemicals, introduction of bulk chemicals, US and Japan, Zircasil nanotechnology pre-treatment for multi-metal applications, which is a 1K product. I will speak. Then Eclipse. Who's Shivam? Shivam is trying to draw something on the screen. Manish? No problem. Go on. Go ahead. Okay, so there is Eclipse, which is known as Astra Crosslink polymer system. It's also totally chrome-free technology. It's a replacement for chrome on aluminum, especially because chrome is used as a sealer for phosphating, and also it is used in extrusion lines for before powder coating pretreatment. But we are not interested in selling any chrome, and we have very good products which can help you, which are totally chrome free, approved by AMA, GSB, Qualicoat, and all that. So we do have a Triclips technology, which is a trichrome, which is also user friendly. So any questions? नहीं अभी तो सर आप स्टार्ट करो. Okay. अभी क्वेश्चंस जब होंगे तो Okay. next step. So Astra Coatings Limited is now 26-year-old. We started in 1997. As I said earlier, we are engaged in manufacturing, marketing, and supply of specialty metal pretreatment chemicals for a wide variety of applications, starting from automotive, going to railways, and many other industries. I will come to that as well. Astra is also into import and distribution of sustainable world-class pretreatment chemicals, which are used in various OEM paint shops and general metal finishing industry. Chemicals manufactured by Astra and its international partners are approved by a number of multinational companies worldwide. So we have, we supply Zircasil in India, in Japan, and China, Korea, everything. So this is about our company. Our partner Bulk Chemical is based in US. They have a company in Japan also, and it's now 50-year-old company. So Eclipse is the technology which has 6 patents, which is being supplied worldwide to many companies like Honda Two Wheelers, Asahi Tech, BBS Japan, YKK, Sakai, Ericsson, Sanmina, Pavi, ASA, Nidec, etc. And all these companies, they are somebody is doing wheels, somebody is doing engine parts, somebody is doing these zippers. So it's a various industries we are supplying to. Now, why do we need to do pre-treatment? Before application of any powder coating, painting, or probably even waxing, oiling, we definitely need to have a proper pre-treatment. Otherwise, whatever top coat we are going to do will definitely fail, have an early failure. So that is very, very important. So the pre-treatment should be a process which should be very well defined for any particular product which you want to do, paint, oiling, or coating, whatever you want to do. So you have to make sure that whatever salt spray you want to achieve or any other test you want to achieve, it must be the treatment process must be very, very highly suitable for that particular metal. So there are many, many things. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि आप जो भी करने जा रहे हैं, कोई प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आपने सोच के करना है कि मेरा ये मेटल है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है सॉल्ट स्प्रे की या और कोई टेस्ट की, उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा बहुत ध्यान से प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस फाइनलाइज करना है. इम्पोर्टेंस मैंने आपको एक बार पहले बता दी है, फिर भी मैं बता देता हूं दोबारा. लाइक देयर इज ऑलवेज ऑक्साइड on the skin of the metal, whether it is aluminium or steel. आयरन में हमको दिख जाता है क्योंकि रस्टी दिख जाता है, या स्टील में,
और एल्यूमिनियम में हमें व्हाइट रस्ट दिखती है। तो ये जो रस्ट होती है ये ही सारा काम खराब करती है, या कोई मॉइस्चर जो होता है पार्ट पे आ जाए बिफोर पेंटिंग, वो भी खराब कर देगा। तो दो एडिशन विल फेल ऑन द पार्ट्स। इट कैन ऑल्सो लीड टू मैनी मैनी अदर फेलियर्स लाइक पेंट क्रैक, जैसे मनीष जी ने पहले बताया था। एडवांटेजेस बहुत सारी है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ प्री ट्रीटमेंट। जैसे कि एक तो रस्ट नहीं लगना, आपका पेंट का जो ग्लॉस लेवल है या कलर है वो फेड नहीं होना। और एडवांटेज बहुत सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि आपका जो पेंट है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली आपके मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड कर जाए और वो कई साल तक खराब नहीं हो। आजकल जो नया प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो स्प्रे लाइंस ज्यादा आ रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन हैवी है, और टू मीट दैट प्रोडक्शन टारगेट यू नीड टू हैव अ कंटिन्यूअस लाइन, अदरवाइज मैन पावर बहुत इन्वॉल्व होती है उसमें डिप लाइंस में। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनियां ऑप्ट कर रही है फॉर स्प्रे पीटी लाइंस विच आर अवेलेबल इन इंडिया नाउ। देयर आर मेनी सप्लायर्स। सो जनरली आज जो नए लाइंस आ रही हैं लेटेस्ट, उनमें हॉट वाटर के 2 जोन होते हैं स्प्रे के, फिर 2 डिग्रीजिंग के जोन्स होते हैं, फिर रेगुलर वाटर के 2 रिंस होते हैं। इट सो वाटर विल बी डिसाइडेड विच क्वालिटी टू बी यूज्ड वेयर, कौन सा पानी कहाँ यूज करना है कौन सी स्टेज में, वो भी डिसीजन लेना होता है। उसको भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में। उसके बाद आप सरफेस एक्टिवेशन करेंगे, फिर फॉस्फेटिंग, रिंस रिंस एंड देन ड्राई ऑफ। उसके बाद आप जो भी आपका प्रोसेस है, पेंट करना है, ऑयलिंग करना है, या जो भी करना है आपको, वो आप करेंगे। सो नाउ एक्स्ट्रा जो है फेरस नॉन फेरस मतलब एल्यूमिनियम और स्टील दोनों के लिए बहुत सारी कंपनीज को केमिकल सप्लाई कर रहे हैं तरह तरह के, जिसमें कि मैं कुछ आई विल टेक सम नेम्स, मैं कुछ कस्टमर के नेम्स शेयर करूंगा। होंडा टू व्हीलर्स है हमारा कस्टमर, जेसीबी का हम लोग सीडी की लाइन रन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। मारुति सुजुकी है, सुधीर पावर है, टाल ब्रॉस, सीएमएच, इंडो ऑटोटेक, Knorr-Bremse, Neil Metal, there are many many companies. They are all doing different kind of processes. तो ये अब मैं अपने जो हमारे पार्टनर है बल्क केमिकल who are based in US, having companies in Japan and Mexico, and we are Astra Coatings Limited is licensee and exclusive distributor for bulk chemical for many years now, and मैं शेयर करूंगा इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट बल्क केमिकल्स। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो हिंदी अच्छे से समझते हैं, नॉर्थ में हैं, एंड आई एम आल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर दी ऑल ओवर इंडिया अदर मेंबर्स हु हैव जॉइंड अस। अनुराग जी, पहले वाली एक बार स्लाइड पे जाएंगे आप? जी हाँ, इसमें आपने लिखा है, नहीं इससे इसके बाद जी ये मेटाबॉन्ड सीईडी फॉस्फेटिंग, एस्ट्रा बॉन्ड फॉस्फेटिंग, ये थोड़ा ये मेटाबॉन्ड सीईडी फॉस्फेटिंग क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे मैं एक एक बताता करके हूँ। इन प्रोडक्ट के ऊपर, या आपकी स्लाइड बनी हुई है इसमें? ओके ग्रेट। सो मेटाबॉन्ड सीईडी जो है, इट इज फॉस्फेटिंग, इट इज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट, वर्क्स एट 40 डिग्री, 2 to 3 मिनट्स इज डिप टाइम, 2-3 मिनट में इसमें कोटिंग आ जाती है पार्ट पे। और ये हम लोग जेसीबी के लिए रन कर रहे हैं 20,000 लीटर की लाइन, और एक 15,000 लीटर की हम नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ा नहीं, स्पेशल प्रोडक्ट सीईडी है। कोटिंग में फॉस्फेटिंग कैसे होती है सर, वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना सर, मैं वो बताता कैसे? हूँ। इसमें जैसे हम एक डिपिंग टैंक होता है, पहली स्टेज आएगी वो हॉट वाटर की होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज विल बी डिग्रीजिंग, then second degreasing, then water ins 1, water ins 2, then surface activation, फिर मेटाबॉन्ड सीडी चलेगा, उसके बाद 2 रिंस, एंड देन उसके बाद एक आपका एक मिस्टिंग रहती है टू मेक श्योर कि कंटेमिनेशन नहीं जाए सीडी में बिल्कुल भी, तो फ्रेश डीआई वाटर मिस्टिंग करी जाती है। सो देन इट गोज फॉर पेंटिंग, सीडी पेंटिंग। सीडी पेंटिंग इज अ वेट ऑन वेट प्रोसेस, इसमें ड्राई नहीं करते पार्ट को फॉस्फेटिंग के बाद। सो ये जो भी हम अभी प्रोडक्ट दे रहे हैं मेटाबॉन्ड सीडी जेसीबी के लिए, वो 100% पार्ट्स प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट हो रहा है पूरा,
for over a year now, and it's doing very well, I must say that. भाई Then इसका we have पर्पस क्या है सर? इसका पर्पज है सर हाई क्वालिटी फॉस्फेटिंग का, क्योंकि 3 मिनट में कोटिंग ऐसे आती नहीं है, सिर्फ स्प्रे लाइंस में 2 मिनट का टाइम होता है, डिपिंग में 2 से 3 मिनट में कोटिंग इजीली नहीं आती है, तो दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड लास्ट ईयर फॉर डिपिंग? फॉर डिपिंग, राइट। for dipping, but for CED only, because it has a very special coating structure and यहाँ मैं coating थोड़ा सा speed is very controlled. सीईडी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा जी, कि व्हाट इज सीईडी कोटिंग? it's a cathode electrode deposition. It is made by few companies worldwide. ये जो होता है सीडी पेंट जो होता है, ये वेट ऑन वेट एप्लीकेशन होती है, और ये अंडर बॉडी पार्ट्स होते हैं ज्यादातर गाड़ियों में। पर आजकल टू व्हीलर वालों ने भी अपनी जो फ्रेम होता है उनका मेन, उसको भी सीडी करना शुरू किया है, क्योंकि टू व्हीलर्स जो है वो कई बारी फार्मर इज अ बिग बायर ऑफ टू व्हीलर्स। जो ये फार्मर्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये लोग साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह टू मोटरसाइकिल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खेतों में चली जाती है, फार्म पे चली जाती है कंफर्टेबली, आराम से। तो साउथ वगैरह में भी जाती है, तो कुछ इश्यूज थी उनको बहुत साल पहले मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो पेंट की इश्यूज आती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर सीडी पेंट करना शुरू किया है, क्योंकि इसमें सॉल्ट स्प्रे 800 आवर, 1000 आवर्स, नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1500 आवर्स। ओके। सो सो तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने आप में है। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, पूरा मतलब HMI कंट्रोल्ड होता है, स्काडा सिस्टम से कंट्रोल होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती जनरली इसमें। और इसमें बहुत सारे तरह के फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगते हैं पेंट में, केमिकल्स में, जो कि हमें हेल्प करते हैं अचीविंग अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड ये सेकंड जो आपका है एस्ट्रा बॉन्ड ये जो फॉस्फेटिक? एस्ट्रा बॉन्ड है, ये स्प्रे फॉस्फेटिंग में जाता है पूरा का पूरा। जो स्प्रे पीटी लाइंस मैंने अभी पिक्चर जैसे दिखाई थी, मैं दिखा देता हूँ एक बारी और, आई वुड लाइक टू शो टू एवरीबॉडी, दिस इज द पिक्चर। ये टनल होती है पूरी बहुत बड़ी स्प्रे लाइन के लिए, इसमें सारे में स्प्रे नोजल्स वगैरह लगे होते हैं, पूरा सिस्टम लगा होता है, हेडर राइजर सब लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस लाइन चलती रहती है, कन्वेयर आप देखेंगे, अगर रेड कलर इधर दिख रहा है बीच में, ये कन्वेयर है। तो इसके ऊपर हैंगर्स के थ्रू पार्ट्स लगा दिए जाते हैं, एंड वो जो है फिर वो कंटिन्यूअस लाइन चलती है। डिपेंड करता है कस्टमर की लाइंस के ऊपर, कोई 1 मीटर पे चलाता है, कोई 8 मीटर पे भी चलाता है, ओके। बट डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, एवरीथिंग एल्स। सो हर चीज की जो है प्रोडक्ट की, मैंने जैसे बोला प्रोसेस डिजाइन होता है केमिकल का, ऐसे ही ये लाइंस भी इसी तरह डिजाइन होती हैं प्रॉपर वे में। ओके। या देन वी हैव मेटाफॉस कॉपर मॉडिफाइड। ये जो है प्रोडक्ट हमारा, मैं पहले दो प्रोडक्ट का दोबारा एक बार कुछ कहना चाहता हूँ, मेटाबॉन्ड और एस्टाबॉन्ड के लिए। ये दोनों जिंक, निकल एंड मैग्नीज पे बेस्ड होते हैं, एंड जो ये मेटाफॉस है, ये स्पेशली मॉडिफाइड विद कॉपर। देयर इज नो निकल, देयर इज नो मैग्नीज। वी आर, आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स एट ऑल, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी सेलिंग दिस। तो ये स्पेशल प्रोडक्ट है, दिस इज मेंट फॉर हेवी कोटिंग ऑन पार्ट्स, जो कि हम ऑयलिंग भी कर सकते हैं और वैक्सिंग भी कर सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत हेवी कोटिंग इंटेलिजेंट से पार्ट्स आप के लिए होता है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवी कोटिंग अकॉर्डिंग टू यू? हेवी कोटिंग, व्हाट डू हेवी यू मीन बाय कोटिंग हेवी मींस कोटिंग? इसका कोटिंग वेट रहेगा करीबन 7-7.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। सॉरी, ओके। राइट राइट राइट। ओके हेवी सर। कोटिंग मींस ऑयल एब्जॉर्बेंट कोटिंग होती है। आपने ऑयलिंग करी अगर पार्ट पे, तो ऑयल एब्जॉर्ब करेगी, वो ऑयल स्टे करेगा पार्ट पे। सो जहां पे फ्रिक्शन होता है, जैसे रेलवे ब्रेक्स हैं, रेलवे के ब्रेक्स बनते हैं, ये उस टाइप के कस्टमर्स ये यूज करते हैं, जो फ्रिक्शन वाले पार्ट्स होते हैं। सो इट ओके। इज लाइक कंपीटिंग विथ मैग्नीज कोटिंग। तो ओके। मैग्नीज कोटिंग जो होती है वो थोड़े डिफिकल्ट होती है टू मेंटेन, तो इसको ये उसका काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है। ओके। एंड नेक्स्ट इज जी, एक्स्ट्रा फिक्स रस्ट कन्वर्टर? या एक्स्ट्रा फिक्स जो है, ये अपना जैसे कई बारी होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें इतनी हमें सॉल्ट स्प्रे की जरूरत नहीं होती, जिन उससे जरूरत होती है पेंट एडिशन की, कि जैसे घर में कोई चीज लगनी है, तो ये हम सिंगल एक्शन केमिकल कहते हैं इसको। तो ये जो कोटिंग कर देता है उसके ऊपर, पार्ट के ऊपर, अगर आप
स्प्रे से, ब्रश, नॉट स्प्रे, डिपिंग एंड ब्रश से कर देता है, तो आप उसको पार्ट को फिर उसके बाद ड्राई करके एंड यू कैन पेंट, तो आपको एडिशन प्रॉपर मिल जाता है। और बहुत ज्यादा सॉल्ट स्प्रे तो नहीं आती, बट ये है कि इमीडिएटली आप पार्ट को यूज कर सकते हैं फॉर सप्लाई। सर ये इट्स काइंड ऑफ इचिंग प्राइमर कह सकते हैं क्या इसको? नहीं। नहीं, इट्स नॉट इचिंग प्राइमर, बट इट्स अ सिंगल पैक कोटर, आई वुड से। ओके, एंड नेक्स्ट इज एस्ट्राफॉस डिप फॉस्फेटिंग। Dip phosphating is again nickel and manganese modified. ये जनरल इंडस्ट्री के लिए है, जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जो टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की पार्ट्स आपके पाउडर कोटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, उनके लिए है ये। जो डिप लाइंस होती हैं, पीटी लाइंस, उनके लिए है। पर क्या है कि आजकल डिप लाइंस भी बहुत अच्छी बनने लगी हैं, हाईटेक बनने लगी हैं। जैसे उसमें भी अभी 2 डिग्रीजिंग के टैंक लगते हैं, 2 रिंसिंग के लगते हैं, डी रस्टिंग, इसमें डी रस्टिंग होता है डिप लाइन में। स्प्रे लाइंस में और सीडी लाइंस में जो है ना, डी रस्टिंग नहीं होता ऑनलाइन, क्योंकि यू कैनॉट स्प्रे एसिड। अच्छा, तो अभी डिप कुछ लाइन समय में सर, मैं साथ साथ अगर आप इजाजत दें तो कुछ लोगों के क्वेश्चन भी मुझे चैट पे आ रहे हैं। तो सर हाँ जी, एनीबडी करिए। कैन आस्क द क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या इमीडिएट लाइव देख रहे हैं, तो जब क्वेश्चन आंसर लास्ट में पूछे जाते हैं तो उसमें कई बार हम भूल जाते हैं कि हम क्या पूछना चाहते थे। तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन बीच में पूछना है तो आप, इसमें एक ऑप्शन है जूम में, आप यू कैन रेज योर हैंड, अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं इसके अंदर। और मैं आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दे दूंगा, आप उसमें पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन। सो आप हैंड रेज कर सकते हैं सर। अभी गणेश जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। गणेश जी अपना को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन सर। गणेश जी, यस सर। जी बोलिए। गणेश जी, मैं इनका क्वेश्चन बोल देता हूँ सर, मेरे को चैट में भेजा इन्होंने क्वेश्चन। जी। ही इज आस्किंग दैट, एक मिनट। I have one basic question is that CED is wet or on wet system, or after CEDs there is baking? आफ्टर सीडी इज बेकिंग, आई विल एक्सप्लेन, पूरा बता देता हूँ जी। आपको। You are doing pre-treatment first, which is totally wet. Then part goes in the same condition, wet condition, to the CD tank. And then the CD process is done. Once that is done, it goes for baking. And then it is ready for use or supply. मतलब इसमें बेकिंग की जरूरत पड़ती है सर? हाँ जी, हाँ जी, कोई भी पेंट होगा वो बेकिंग होती है, इसमें सीडी में स्पेशली सब में होती है, एक्सेप्ट पीयू पेंट, वो आप ज्यादा बेहतर सब्जेक्ट जानते हैं मेरे से भी, हाँ, एंड वो आप व्हाट इज द डिफरेंस एक्सप्लेन कर बिटवीन सकते हैं। नॉर्मल सीईडी एंड मेटाफॉस सीईडी? नहीं नहीं, मेटा बॉन्ड जो है, मेटा बॉन्ड तो फॉस्फेटिंग केमिकल है, वो कोटिंग देगा सीडी से पहले बॉन्डिंग के लिए पार्ट के साथ, मेटल के साथ। ओके। हम्म। नैनो फॉस्फेटिंग एंड करंट फॉस्फेटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ बिग डिफरेंस, आई विल कम टू दैट, आस्क हिम टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, देन या, अभी रस्ट रिमूवर की बात आपने की, अभी हाँ डिप जी। फॉस्फेटिंग की बात भी हो रही है। जी। लेकिन मैं अनुराग जी एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा, कई बार हम्म। क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो फिनिश प्रोडक्ट है, चाहे पाउडर है, चाहे लिक्विड है, चाहे कोई भी कोटिंग है, हम्म। उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, सरफेस के ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे हम अभी प्री ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और प्री ट्रीटमेंट में हमारा जो मेन बेसिक रीजन है आज की वेबिनार का, वो हम्म। विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ, मींस फॉर द एंड यूजर एंड द मैन्युफैक्चरर। तो हम्म। कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कंप्लेंट आ जाती है प्रोडक्ट के अंदर, और आमतौर पे कस्टमर जितने भी होते हैं वो प्रोडक्ट की ही क्वालिटी के ऊपर इशू उठाते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमारे कहीं कमी है। तो थोड़ा सा नॉलेज आप प्री ट्रीटमेंट के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स को भी दे कि वो कैसे, उनको पता लग सकता है कि प्री ट्रीटमेंट में मतलब कहाँ कहाँ डिफेक्ट रहते हैं जो प्री ट्रीटमेंट ना होने की वजह से होते हैं। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम प्री ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो बहुत सारे तरह के फेलियर्स हो जाते हैं, और अगर गुड क्वालिटी प्री ट्रीटमेंट नहीं है तो भी वो सिमिलर ही हो रहते हैं।
हाँ, वही मार्केट डिफेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज शेयर करते हैं। और सबसे मैं आप सबके लिए इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपको अपना कुछ आंसर मिल जाए और उसके बाद उसके ऊपर आप आगे कोई बात पूछना चाहें तो अनुराग जी इज देयर। फिर मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हम लोग जो कंप्लेंट्स आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं सरफेस के ऊपर, एंड समटाइम्स वो प्री ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं, अच्छे प्री ट्रीटमेंट ना होने की वजह से होते हैं। और उस पे जो भी हमारे कस्टमर हैं, या आमतौर पे जो कस्टमर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट में कमी है, रादर देन जो उनका प्री ट्रीटमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें नहीं होती है। तो ये मैं अनुराग जी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्री ट्रीटमेंट के डिफेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में आप जानकारी दें। सर प्री ट्रीटमेंट के डिफेक्ट और फेलियर्स बहुत सारे होते हैं, देयर आर मैनी मैनी। पहला पहला तो यही होता है कि अगर हम अच्छा प्री ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, फर्स्ट स्टेज से ही चले, अगर अच्छी क्लीनिंग नहीं हुई, उसके ऊपर कोई भी डस्ट रह गई, डर्ट रह गई, ऑयल रह गया हल्का सा भी, तो वो या तो पेंट के बाद नजर आएगी डस्ट और डर्ट, या ऑयल रह गया अगर जरा सा भी, तो वो आपको फेलियर लीड करेगा करेगा एडिशन फेल हो जाएगा पेंट हम्म। का पहला। हम्म। नहीं तो वो इम्पैक्ट टेस्ट में फेल हो जाएगा, जो हम अपने इन हाउस करेंगे साथ साथ। तो इम्पैक्ट टेस्ट भी वेरियस होते हैं, पाउडर्स पे अलग स्टैंडर्ड्स हैं, लिक्विड पेंट्स पे अलग है, सीडी में अलग है। सो हर पेंट का अपना एक अलग क्वालिटी है, पहले तो हम ये समझ लें। हम्म। सेकेंडली हमें ये देखना है कि हमारे को क्या इश्यूज आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो पहले तो, तभी मैं बार बार पहले भी बोला कि हमारा जो प्रोसेस है वो हम्म। बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम पीटी प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं, हमारा हम्म। इक्विपमेंट कैसा हो। इंडिया में एक जो एक एमएसएमई सेक्टर में स्पेशली इशू है, छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ड्यू टू मनी कंस्ट्रेंट जो है ना, वो बहुत अच्छा इक्विपमेंट नहीं लगा पाते। और ये फिर बहुत वो बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है। और हम्म। वो बेचारे भी क्या करें, वो नहीं कर पाते, और उनको मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। हम्म। क्योंकि हर ट्रेड में लोग होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ उनका हम्म। कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि हम किसी भी यूजर की हेल्प करें। हम्म। तो क्या होता है कि उसमें अच्छा इक्विपमेंट लगाना और लो कॉस्ट पे लगाना, वो भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट सप्लायर, अच्छा पेंट सप्लायर ढूंढना, और हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले समझना कि भाई ड्राइंग में क्या आया है, कि क्या हमें एंड रिजल्ट देना है, हमें 200 घंटे सॉफ्ट स्प्रे देना है या 1000 घंटे देना है। तो उसके हम्म। हिसाब से हम पूरा अगर उसको डिफाइन करें, उसको स्टडी करें, और हम्म। उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं, या हमारी टीम भी अवेलेबल रहती है हमेशा, एंड हम हमेशा हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, एक चीज और आती है कि सर कॉस्ट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म। हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड है कि हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो बोलते हैं यार ये 50 रुपए का दे रहा है आलू, तो वो 40 का दे रहा है, वो क्वालिटी नहीं देखते, हम वो हम्म। लेके आ जाते हैं। तो इट इज द सेम गेम। हम अपफ्रंट कॉस्ट को देख के हम डिनाई कर देते हैं सप्लायर को कि भाई हम नहीं आपसे लेंगे क्योंकि महंगा है। एट द एंड ऑफ डे वो कितना कम लग रहा है पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट क्या आ रही है, कंजम्पशन क्या आ रहा है, कितनी स्लज बन रही है, कितना वेस्ट जनरेशन हो रहा है, कितना हम्म। टेम्परेचर जा रहा है, वो सारा अगर हम देखें तो वो कुल मिलाकर के आपको बेनिफिट हम दे सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक पास लाइन डिस्कशन में थी, और इवन जो प्लांट सप्लायर उसने भी बोला आपको सर 1.25 करोड़ का फायदा होगा 5 साल में, इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कस्टमर की समझ में नहीं आया, कहता प्राइस ज्यादा है। हम्म। तो उसको ये नहीं दिखा कि मेरे को 1.25 करोड़ बचने हैं 5 साल में। तो आप सोचिए कि ये कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पे, और ये हम्म। प्रिवेल करती हैं हर सेक्टर में, इट इज नॉट ओनली अवर इस सेक्टर। साथ में हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं टेकेज से हैं। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना है सर, अगर हम लोग का ये हो रहा है, एडिशनल इश्यूज आ रहे हैं या फिर इम्पैक्ट फेल हो रहा है, मेरे को 3 प्रॉब्लम है, या तो एक पिनोल आ रहा है, दूसरा मेरे को तीन हो प्रॉब्लम रहा है कि हाँ पिनोल आ रहा है, दूसरा मेरे को प्रॉब्लम है कि अगर मैं डीएफटी सीडी का 20+ जा रहा हूँ तो मेरा इम्पैक्ट पे फेल हो रहा है। अगर मैं सीडी का डीएफटी 15 कम रख रहा हूँ, मतलब 10 to 17 तक भी रख रहा हूँ, तो मेरा इम्पैक्ट पास हो रहा है। तो इस पे कोई रीजन है कि प्री ट्रीटमेंट गलती हो सके? आपका मैं आरिफ पॉइंट जी, समझा। आप बताइए आरिफ सर। आप आरिफ जी बताइए सर। ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। यू हैव थ्रोन अ वॉली। देखिए, जो आपके पिन होल्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम क्लीनिंग इशू। आप अनम्यूट कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी शुड डिस्कस दिस। हेलो। अच्छा, एक मिनट।
ओके हाँ, उनको अनम्यूट कर दो आप प्लीज, टेक एच। जी जी हाँ हाँ हाँ, तो बताइए बताइए सर। आपका जो क्लीनिंग का इशू है वो बहुत बड़ा है। पिन होल्स उसी से ही आते हैं, बिकॉज आपका ऑयल या कुछ रह जाता है वहां पे सरफेस मेटल में। ओके ओके। नंबर एक। नंबर दो, और कोटिंग वेट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोटिंग वेट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सीडी में, आप जानते ही हैं। तो आपका कोटिंग वेट इम्पैक्ट तो हाँ, तो मैंने वो चेक भी कराया था, जैसे कि फॉस्फेट का वेट नॉट मोर देन 3 ग्राम है, वो हाँ भी मैंने चेक किया, वो भी बराबर है। प्री ट्रीटमेंट भी प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, मुझे डाउटफुल है। हाँ सर, वो लेकिन आपको फिर वो उसके लिए फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए सरफेस कंडीशनिंग की क्या पोजीशन है, उसमें आपका कोटिंग का जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो ये सारे मैटर हमें ठीक करने पड़ेंगे उसमें सर। फिजिकली अब देखोगे तो सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ सर डीएफटी फिजिकली बढ़ाने पे मैंने मैंने इम्पैक्ट। नहीं, फिजिकली फिजिकली मैंने बहुत सारे सर पैनल्स देखे हैं पिछले 30 साल में। बहुत सुंदर सुंदर पैनल लगते हैं और फेलियर ऐसे होते हैं उस पे कि हाँ, वो हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो तो अभी उसमें और एक एडिशन भी फेल नहीं है, एडिशन भी फेल नहीं है, एडिशन ऐसा भी फेल नहीं नहीं है होगा एडिशन। सर। एडिशन भी एडिशन फेल फेल नहीं नहीं है, होगा। एमआईबी की भी फेल नहीं है, एमआईबी की हाँ फेल वो नहीं है, नहीं होगा एडिशन भी फेल नहीं है। इम्पैक्ट भी पास हो रहा सर। है, लेकिन अगर डीएफटी 15 से नीचे रखो तो, जैसे ही 15 के ऊपर जाओगे तो इम्पैक्ट फेल हो रहा है। अब उसमें भी इम्पैक्ट फेल किधर होगा मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे सर वो बॉल उसमें गिर रहा फिर है। उसमें प्रोसेस कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अच्छे सिस्टम्स डालने पड़ेंगे और कोटिंग वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कोटिंग स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि वो फिल्म कैसी आ रही है कोटिंग की। लेकिन और इसमें क्या उसमें लग रहा है आपको डिफेक्ट, उसमें क्या प्री सरफेस, ट्रीटमेंट? मैं बताता हूँ आपको प्री ट्रीटमेंट डिफेक्ट है। उसमें क्या है कि सरफेस एक्टिवेशन प्लेज अ वेरी वेरी की रोल। ओके Besides how much temperature you have, how much general sludge generation is there, these are few things which need to be taken care of very well. ओके ओके। जी, मतलब प्री ट्रीटमेंट इशू हो सकता है आपका हो वही सकता कहना है, है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरफेस का भी इशू हो सकता है। होता क्या है, हम लोग सरफेस एक्टिवेशन को सोचते हैं चल रहा है तो चलने दो, बाद में चेंज करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है मेरे हिसाब से प्रोस्पेटिंग फेल हुआ। ओके ओके जी मिस्टर जी जी। शिवम भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे। मिस्टर शिवम, हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट सर, वो उन्होंने शायद अपना हैंड रेज हटा दिया है। कोई नहीं, आप पूछ लो उनको, हाँ, कोई नहीं। मिस्टर प्रवीण शिवम, ब्रो। जस्ट होल्ड ऑन सर, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मिस्टर शिवम। ओके सर, आपको मैंने अनम्यूट के ऑप्शन भेजा है। शिवम जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी शिवम जी, प्लीज शेयर योर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से वो नहीं देख पा रहे हैं। परमिंदर जी पूछिए सर क्वेश्चन, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। जी प्लीज। मे- मेरा एक क्वेश्चन है सर कि नॉर्मली पीटी जिंक फास्फेट पीटी किया तो आइडियल टाइम गैप कितना मैक्सिमम होना चाहिए उसके बाद कि हम पेंट एप्लीकेशन कर सकें, मैक्सिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली तो होल्डिंग टाइम तो जीरो ही होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस लाइन जो भी आजकल लग रही है स्प्रे लाइन, उनमें तो देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट अगर अच्छा क्वालिटी का प्री ट्रीटमेंट है तो एनवायरमेंट कंडीशंस क्या है, आप कहाँ पे होल्ड करोगे उस मटेरियल को, तो 2-3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे हम कहते हैं, उससे ज्यादा होल्ड करने नहीं देते। बिकॉज उसमें क्या होता है, कहीं पे अगर कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, या कहीं पे एसिड यूज हो रहा है, तो हम उन कंडीशंस में कैसे उसको रख सकते हैं, उसको रख ही नहीं सकते, तो पीटी खराब हो जाएगी। जी जी जी। होल्डिंग सर टाइम एल्युमिनियम लॉजिकली तो पार्ट नहीं के होता, ऊपर, मगर अगर आपको नहीं, जी हो एल्यूमिनियम पे गया तो क्वेश्चन बिल्कुल हो ही गया। सर, एल्यूमिनियम पे बिल्कुल परमिंदर ही जी कर का आंसर सकते हो गया सर। हैं। जी हो गया। जी, यस सर, यस। हाँ जी, ओके, थैंक यू। एल्युमिनियम पार्ट के ऊपर पिन होल का इश्यू आ रहा है, और उनका पीटी सिस्टम जो है वो नॉन कोटिंग जिरकोनियम बेस है, फिर भी नैनो पिन नैनो। पिन ऑयल इशू आ रहा है। So then it can be because coming from many issues, क्योंकि वो एल्यूमिनियम देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेड है, ADC12 है या एक्सट्रूजन है या कुछ और है या AC4CH है फॉर अलॉय व्हील। सो वो बिना देखे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, whether they are using any deoxidizer or not, what kind of cleaner they are using, etching type, non etching type. So there are many things, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो या तो ये पूरा शेयर करें हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को, हम सोल्यूशन दे सकते हैं।
ओके, हरी कैम से हैं, एक मिनट मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरि प्रताप जी आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट। हरी कैम से हैं, वो काफी देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, सर हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आपको, हरी कैम। यस सर, Hello. यस सर। हाँ जी। Yeah, sir. Doubt decreasing bath after bath prashna ka 1 or 2 year और माइक को थोड़ा सा going. अपने माउथ से How दूर to रख check? के बोले सर। माइक को थोड़ा सा अपने माउथ से दूर होके बोले सर। Hello. Audible, हाँ sir? जी बोलिए, यस। Yeah, sir. After decrease bath using up to 1 or 2 years, how to check surfactants and wetting agent ratio is correct or wrong? It's not easy to check the surfactant in the bath. The only way you can Yes. check your part, I'll tell you, there is a kind of parameter you can say or test you can say, which is known as water breakage. Is English okay with you, Hari? यस यस। Yeah, sir. Tell me. What you can do is you can, after degreasing, you can take your part. When you take your part in the water rinse, just pick up the part and see if there's a water breakage. Like there should be a proper water film on the part. It should not break. If Yeah, it is breaking, in case water breaks is found means our wetting agent yes, is your cleaner is low not doing its content job. present in Yeah, degrees cleaner in is both. not working well. So there's something wrong with the Yeah, cleaner. this is visual confirmation. Any analysis methods available, sir? There is a spot test, but it's not available usually in India. So it's very difficult also. There is no logic doing that. Best is this only, whenever you're doing pre-treatment, just pick up 1 part, 2 parts every hour and keep checking the water breakage. That is the best thing to do. So you know at least your parts are getting cleaned properly. And you can check Okay. on sheet metal is easier because you have bigger area. In tubular is Yes, difficult yes, because many areas will be welded and all that stuff. sir. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Welcome. हरि प्रताप जी काइंडली अनम्यूट सर जी। हेलो जी बोलिए सर। जी। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना जो अपना फास्फेट कोटिंग है उसका जी। एसईएम रिपोर्ट होता है सेमी इलेक्ट्रॉनिक, उसका क्रिस्टल साइज कैसा होना चाहिए कि ये ओके है शेप में या नहीं? हर प्री ट्रीटमेंट का अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होगा कभी भी वर्ल्ड वाइड। हर प्रोसेस का अलग होता है, तो अभी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं, जैसे जीआई कोटिंग के लिए पूछ रहा हूँ। जीआई कोटिंग, जीआई में तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई खास रोल नहीं, इट इज ऑलरेडी कोटेड विद जिंक। नहीं, जिंक के ऊपर हमारे को फास्फेट कोटिंग करके सीडी कोटिंग करना है। मेरा एक क्वेश्चन था, कस्टमर क्वेश्चन था कि आपका जो क्रिस्टल शेप है ये अपना निडल साइज होना है या स्फेरिकल, ऐसे 2 शेप आए मेरे पास आपको क्या, स्ट्रक्चर। देखिए वही मैंने बोला कि हर प्रोसेस के लिए ना यू हैव टू चूज ए प्रॉपर फॉस्फेटिंग। तो अगर आप अलग से मनीष जी ईमेल शेयर कर लेंगे आपको अपनी, तो आप हाँ, उसके ऊपर भेज दीजिए, तो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस के अभी हमारे पास और नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब नेक्स्ट आपका आता है सर एस्ट्रा स्ट्रिप ORG जी। CED पेंट स्ट्रिपिंग, ये क्या है सर? ये पेंट, जैसे हमारे कई बारी पार्ट्स ना रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस इन द प्रोसेस, तो वो उसका पेंट रिमूवर है बेसिकली। एंड वी हैव, हमारे पास एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर CED पेंट स्ट्रिपिंग। ये 3 मिनट के अंदर पूरा स्ट्रिप कर देता है पेंट को, एंड इट इज नॉट एसिड बेस्ड। ओके, इट्स वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय मेनी कंपनीज इन इंडिया। ओके। जी। शिवम जी वापिस आ चुके हैं, इनका दोबारा से हाँ जी, क्वेश्चन शिवम। लेते हैं। यस शिवम जी पूछिए। अनम्यूट प्लीज। हाँ जी हाँ जी बोलिए शिवम जी। सर। शिवम जी बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक एज से दोबारा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पूछिए सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, जैसा आपने बताया पेन स्टिपर है आपके पास, तो मैग्नीशियम पे सीडी जो किया है विदाउट हैम्परिंग मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, वो पेन स्टिप कर रहा है आज से। सर वो आपके जो है, हम आपको सैंपल भेज देंगे आरिफ जी, चिंता मत करिए आप। तो वो आपको परफेक्ट। अच्छा, और एक मे बी आपके ऑफ टॉपिक हो गया जी। अभी, जैसे कि सीडी पेंट है, अभी आपका तो प्री ट्रीटमेंट मेन है। सीडी ये
फायर रिटार्डेंट पेंट पे कंसीडर होता है या नहीं होता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक, बिकॉज मैं वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन हूँ जिसने की फायर रिटार्डेंट पेंट रादर इडिवेसेंट पेंट की सेल मैंने दिल्ली मेट्रो पे 10 स्टेशन किए थे, और छतरपुर मेट्रो का स्टेशन है न्यू दिल्ली में, वो कि नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ है, तो वो पूरा का पूरा हमने जो है, म्यूट कर दो यार मनीषा, तो वो पूरा का पूरा हमने सप्लाई किया था और अप्लाई किया था, तो वो 30 मिनट फायर रेटिंग है उसमें। तो आपको मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा क्या फायर रेटिंग है, फिर मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट। अगर उसमें भी अलग अलग फायर रेटिंग है ना, H1, हाँ, H2, उसमें H3 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट होती है। अगर आप कोई भी पार्ट रेलवे को देते हो तो उनका वो क्राइटेरिया ISM स्टैंडर्ड है, वो हमको करना ही पड़ता है पास, उसके बिना हम लोग कोई कोटिंग कर नहीं सकते। रेलवे मांग रहा है सीडी, वो बोलता है ये होना चाहिए, लेकिन वो कोई बता नहीं पा रहा है कि सीडी पास करता है या नहीं करता है। सीडी पास नहीं करता, फायर रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है सीडी में, कोई भी रजिस्टर, जो फायर रजिस्टर होना चाहिए, कुछ तो एक पार्ट है। नहीं सर, फायर रेजिस्टेंस नहीं है। H1, H2 कुछ और। देखिए, देयर आर 4 कोटिंग्स इन फायर रेजिस्टेंस पेंट, ओके, it's a 4 coat system, it's not single coat system, so I can give you that information, don't worry about it. Arif, शिवम जी, hello Arif, ओके, you can have a phone call, don't worry, Monday कल भी कर लेना, कोई इशू नहीं, आप कॉल कर लेना। कोई नहीं। शिवम जी, ऑलराइट जी, शिवम जी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा फिर मेरे ख्याल से उनके माइक का प्रॉब्लम है। हाँ जी, सर, शिपिंग का आपने बताया। इसमें एक और क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिसाइड, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉस्फेट कौन से प्रोडक्ट को देना होता है? ये क्वेश्चन एक आया। मैंने पहले ही बोला कि इसको, प्रोसेस को और केमिकल को पूरा डिफाइन करना पड़ता है एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायरमेंट। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी सॉल्ट्स पर रिक्वायरमेंट 200 घंटे ही है, तो आपको यू डोंट नीड वेरी वेरी हाई क्वालिटी फॉस्फेटिंग, जो कि आपको मालूम पड़ा 150 रुपए, 140 रुपए केजी आ रही है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको वी कैन गिव यू अ क्वालिटी विच विल मीट योर क्राइटेरिया। तो ये प्रोसेस जो आपको प्रोडक्ट पे चाहिए फिनिश करके, कि मेरे को इतना सॉल्ट स्प्रे चाहिए, वो सारा डिफाइन होता है। तो वो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तभी तो सीडी का केमिकल अलग है, स्प्रे का केमिकल अलग है, डिप का अलग है। तो डिप में और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट दिए हैं अपने। तो हमारे पास बहुत लंबी रेंज है प्रोडक्ट्स की। वो आप मनीष जी से ईमेल में शेयर कर लेंगे, मनीष जी अभी अपनी चैट में ईमेल शेयर कर लेंगे, या मैं भी शेयर करूंगा। आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हमको फोन कर सकते हैं। हमारे और सर, टीम ये शिवम जी का क्वेश्चन ये आया है कि अलॉय व्हील के अंदर कितने टाइम में स्ट्रिप कर सकते हैं लिक्विड पेंट को? पेंट को, यस। पेंट को संजीव, कैन वी कम अप? संजीव सिंह को आप नहीं, आप मिस्टर संजीव सिंह है हमारे, उनको जरा म्यूट करो, ही विल टेल। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, ही इज देयर, संजीव सिंह। लेट हिम आंसर दैट बिकॉज संजीव जी, आपको मैंने, ओके, गो अहेड। सर, ये 10 to 15 मिनट्स में सारे क्लियर हो जाते हैं मैक्सिमम, विथ पाउडर कोटेड ऑल्सो। जो आपका स्ट्रिपर है उससे? जी, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर जो आपका है, ये क्या पर्पस का है सर? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग वहां पे यूज होती है जहां पे बहुत प्रिसिशन क्लीनिंग चाहिए हमारे को। ओके, तो ये जनरली बहुत हाई एंड पार्ट्स पे होती है, 4 व्हीलर के, अभी ईवी के जितने पार्ट्स हैं उसके ऊपर जो ये मोटर्स वगैरह होती है ना, उनकी हाउसिंग होती है, सब की सब बहुत हाई क्वालिटी क्लीनिंग चाहिए होती है, जहाँ डस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे को वहां पे। ओके, जी, ये अभी एक्वा बायो पूछे था तन्मय जी। सर, ये हाइड्रोफोबिक होता है सर, ये आउटर कवरिंग, और इनर हाइड्रोफिलिक होता है, कैसे होता है ये टेक्निकली? और कोई एमल्सिफायर, व्हिच एमल्सिफायर डू यू यूज? I was just curious to I can't know. question that in this forum, sorry, because these are all our proprietary products, Okay, all our proprietary understood. technology, so obviously I हम लोग cannot- एंड में इसके, जब हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग अभी अनुराग जी का पूरा डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे, तो आप इनसे बाद में भी पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड।
आपका थोड़ा सा नंबर शेयर कर दीजिए सर, हाँ सब आपका होगा सर, नाम अभी ना अभी नहीं सब चीज पता देंगे चले। सर। अब आप इसमें लास्ट तक हाँ बने रहिए, वी विल Thank you. शेयर ईच एंड एवरीथिंग। या यू हैव टू वेट फॉर दैट। अभी श्योर श्योर, इसमें थैंक यू। इसमें जो है, थैंक यू, इसमें जो है एक लास्ट प्रोडक्ट है सर हमारा एस्ट्रा D008 करके वॉशिंग केमिकल। ये वॉशिंग मशीन्स में यूज होते हैं केमिकल्स, और जो पार्ट्स होते हैं बहुत सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में यूज होते हैं, वो उनको रस्ट प्रोटेक्शन चाहिए होता है टेम्पररी। जैसे ट्रांजिट में पार्ट्स जाने हैं, सपोज करिए दिल्ली से चंडीगढ़ जाने हैं, बॉम्बे जाने हैं, तो 10 दिन 15 दिन का उनको रस्ट प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो हमारा एक केमिकल है, वॉशिंग मशीन्स में इंडस्ट्रियल में यूज होता है, जिसपे कन्वेयर लगी होती है, पार्ट्स रख देते हैं या डिपिंग से स्प्रे से भी कर देते हैं, तो उससे पार्ट क्लीन भी हो जाएगा और उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो नो नीड टू यूज रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल। सर 2 क्वेश्चन और आया कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्रिस्टल साइज फॉर बेस्ट पीटी एज वेल एज सीईडी। कुछ क्रिस्टल साइज के बारे में पूछा जा रहा है। आई थिंक इट इज बेटर दे ईमेल मी, बिकॉज ये फॉरम में बहुत सारे लोग हैं जो कि और आगे भी सुनना चाहते होंगे, और वी हैव टू स्पीक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते इट हैं। इज बेटर कि हम वो वेट कर लें, एंड दे कैन ठीक है। कॉल कर लें हमें, ईमेल कर लें मेरे को और संजीव को, कोई इशू नहीं है। Now, मैंने I started this slide earlier also. Bulk Chemicals, it is now a 50-year-old company based in US. They have a plant in Japan and Mexico also, and there are more than 20 distributors now and licensees outside of USA. We are one of them. We are licensee and exclusive distributor, meaning we make their chemicals in India also, not only we import and supply. So we are authorized to manufacture and sell their technologies in India. So the business is about developing, manufacturing, marketing, and servicing environmentally green compliant specialty pretreatment process. Our focus is to become leader in the field. Bulk Chemicals was founded in 1974, ESOP company. Reading, USA is the headquarter. Again, I'm telling you, Japan and Mexico. So we have a Japanese outfit, Bulk Chemical Japan, and Bulk Chemical INC, which is based in US, and Bulk Chemical Mexico. सर एक क्वेश्चन और आया है, आपके बारे में तो पूरी जानकारी मैं दे ही दूंगा। एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्निकल लोगों की हेल्प कर पाए, इसलिए ये फोरम पेंट विजन हम लोगों ने नहीं रखा नहीं, हुआ ठीक है। है, मनीष करनी भी आपकी चाहिए। जानकारी देखिए, पूरी पूरा हम देंगे। फॉर पाउडर कोटिंग विच प्री ट्रीटमेंट इज बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटी क्रोसिव प्रॉपर्टीज एंड इको वाइज, मींस एनर्जी सेविंग की बात हो रही है, जिंक ऑक्साइड और जिर्केनियम ऑक्साइड प्री ट्रीटमेंट, मतलब पाउडर कोटिंग के लिए एंटी क्रोसिव में प्रॉपर्टी में। देखिए मतलब इसमें इको की बात हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें जिंक ऑक्साइड या जिंक्रोनियम ऑक्साइड काम में आएगा, कौन सा काम में आएगा? इनको बोलिए अब आप सही प्लेटफॉर्म पे आए और सही स्लाइड पे आए। वी आर एट द करेक्ट स्लाइड नाउ, ओके सर, where गो we wanted to reach. Bulk Chemical has 3 trademarks, major trademarks. One is Zircasil, which is a phosphate-free chemistry, which is a zirconium-based chemistry. Zirconium and silane, okay? And then this is a multi-metal product. Then we have Eclipse, which is known as ester crosslink polymer system. इस प्रोडक्ट पे 6 पेटेंट है हमारे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में हमने फाइल करे थे जब हमें होंडा मोटरसाइकिल शुरू करना था, आई थिंक 2010 में। तो वो हमारे पास होंडा मोटरसाइकिल की लाइन है जो कि हम रन कर रहे हैं 13 सालों से, और इसमें बाथ लाइफ होती है 6 मंथ्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। आई विल कम टू दैट। तो और ट्राइक्लिप्स भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है जो कि वर्ल्ड वाइड, ये सारे तीनों प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। सो आई Zircasil is one you can look at। जो मनीष जी ने भी क्वेश्चन किया उसका आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ। Zircasil is a phosphate-free chemistry which works at 15 degree plus temperature. Bath life in spray line is 1 year. तो आपको बार बार चेंज नहीं करनी है, और इसमें डीएम वाटर भी बहुत कम लगता है, जैसे कि फॉस्फेटिंग में ज्यादा लगता है। मतलब ये जो आप बता रहे हो सर, ये एंटी क्रोसिव प्रॉपर्टीज के लिए है और एनर्जी सेविंग भी है, और हाँ मनीष जी, इकोनॉमिकल। मैंने बताया जैसे 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए बात में। हाँ, तो हम हमारा रिकमेंडेड 15 है, बट हम ये कहते हैं कि हम एरर लेके चलते हैं कस्टमर एंड पे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी स्काडा ज्यादा दिखा देता है, हो सकता है सेंसर खराब हो जाए कुछ भी, तो हम बोलते हैं 20 डिग्री फिक्स कर दो इसका टेम्परेचर आप। तो कभी नीचे भी जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है, इट शुड बी 15 प्लस, दैट्स ऑल। तो इसमें स्लज नहीं बनती है प्रोडक्ट में,
So it is totally green. तभी logo भी green है Zircasil का. ओके So it's a very environment friendly technology. And इसमें आप steel, aluminium, stainless steel, zinc, ये सारे मेटल इकट्ठे प्रोसेस कर सकते हैं. तो जैसे जापान में ओसाका में एक लाइन है YKK की, जो ये जिप बनाती है कंपनी, बट ये बहुत सारे लोग हम लोग नहीं जानते होंगे इंडिया में. YKK AP एक कंपनी है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल भी बनाती है, जो कि डोर्स, विंडोज एंड ऑल दैट. They are using almost 8 metals in the line. So this is totally chrome free, phosphate free, no sludge. Faster time is like I think the contact time is 15 seconds to 60 seconds only with the metal. And then low water and energy usage. Pre-treatment for CED also. It is safe for all metals mostly. So it can be used in automotive, alloy wheel, white goods, coil coating and general metal. So it's a very special product. और ये 1K प्रोडक्ट है, इसमें कोई एडिटिव नहीं डलता. बात स्टार्ट करने में हमारे को एक pH एडजस्टर डालना होता है, वो हम FOC फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कस्टमर के यहाँ शुरू करने के लिए, क्योंकि वो साल में एक बार डालना है बस. So no need to worry about it. Then हमारा बैकअप है, and we get 1000 hours of salt spray under CD with this, and even under powder coating. ओके Right? नेक्स्ट स्लाइड पे आए. क्वेश्चन आई थिंक वो आंसर ही हो गया स्लाइड में. जी जी जी. हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. सो दिस इज Eclipse, एनवायरमेंटली पूरी, इट्स अ टोटली कंप्लायंट लिक्विड प्री-ट्रीटमेंट सिस्टम, एंड we have 6 patents on this technology, as I said earlier. So Eclipse also is totally chrome free. Again 1K system. There is no other additive to be used in this product. It is totally meant for aluminium. This is okay. So this is totally chrome free, pre-paint, liquid, powder. Even Eclipse में एक बहुत बड़ी खासियत है जो आप सबको मैं बता दूं आज. This is the only one of the Eclipse product is the only product जो कि HR paint में सारे टेस्ट पास करता है. हीट रेजिस्टेंस पेंट में, लिक्विड पेंट जो आप ओकित्सुमो का या सन का और बहुत सारी कंपनीज हैं उनका, तो उशिमा कोग्यो का, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारा Eclipse 4600, ये ही अकेला प्रोडक्ट है जो कि HR पेंटिंग के टेस्ट सारे पास करता है वर्ल्ड वाइड. कोई और केमिकल है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है. मैं इसके साथ ही आपको एक चीज और जानकारी दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा हम एज पेंट विजन हम लोगों का एक मई के अंदर बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव, टेक्निकल कॉन्क्लेव आने वाला है, और उसी को लेकर आज का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग ये प्री ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल कोटिंग के ऊपर टेक्निकल पूरी हम लोग इसमें जानकारी देने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू प्री ट्रीटमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें आपको उसमें इंडस्ट्रियल कोटिंग में मिलने वाली हैं. मैं आप डेट भी नोट कर सकते हैं, 10, 11, 12 ये टेंटेटिव डेट्स है. इन टेंटेटिव डेट्स में हम आपको दिल्ली बुलाने वाले हैं एक बहुत शानदार प्रोग्राम के अंदर, जिसके बाद हमारा एक अवार्ड शो भी रहता है MSME इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था. तो मैं अनुराग जी से उस समय भी रिक्वेस्ट रखूंगा अपनी तरफ से कि आप और भी नई जानकारियां इकट्ठी करते रहें, और उस समय जब हमारा ये लिक्विड पेंट का इंडस्ट्रियल कोटिंग का कॉन्क्लेव रहेगा टेक्निकल, तो उसमें भी आप हमारे को हेल्प आउट करें. एक क्वेश्चन आया सर, is it possible to go for nano coating with a inline de-rusting? अनुराग जी, which product you want to do? अब ये तो नहीं लिखा उन्होंने, उनसे पूछना पड़ेगा. वैभव जी हैं, वैभव जी आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यू कैन फर्दर आस्क द क्वेश्चन. सुरेंद्र सिंह जी, आपने चैट में हैंड रेज किया है. ओके, वैभव जी ने आगे है. चलिए वैभव जी पूछिए. So my question is, we are using for sheet metal parts, CRC and HRCA. We are doing inline de-rusting. So is it possible for go to nano coating with inline de-rusting? Is it a dip line or a spray line? Yeah, it's dip line. Dip line only, na? And you're doing mild steel, right? Yeah. So there are going to be some changes in the process, but you can do it. Okay. Currently we are having 12 tank process. So is it possible to shift de-rusting prior to go for pre-treatment?
what I'll do, Ever, in the end, I'm going to share my email, phone number, and my, associate's email. So you can definitely email us or call us, and then we can speak. Okay. Okay, sure. We will Where are connect you on from, this. Ever, by the way, which part of India? Sir, we are from Kanpur. Currently, we are Loya Group. Okay. So we are a manufacturer of some machineries. Yeah, I know. There we are doing powder coating as well as liquid coating also. All right. We can definitely help you. So please wait till the last slide. I would request. Okay, we will get connect on the same. Yeah, Thank please, you. please, most सर welcome. एक क्वेश्चन जो था ना, वो पहले जो एंटी क्रोसिव की बात हो रही थी, तो वो जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एंटी क्रोसिव प्रॉपर्टी, मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही रीड करता हूँ. फॉर पाउडर कोटिंग which pre-treatment is best with respect to anti-corrosive properties and eco-wise, zinc oxide or zirconium oxide pre-treatment? I already questioned his answer here in this slide. नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं सर. वो पूछ रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड या जिर्कोनियम ऑक्साइड में से कौन सा बढ़िया रहेगा फॉर एंटी क्रोसिव प्रॉपर्टी. हाँ, यही ना, जिर्कासिल बढ़िया रहेगा ना अगर इनको एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए तो. ये जिंक ऑक्साइड है या जिर्कोनियम ऑक्साइड है? दिस इज जिर्कोनियम. हाँ, यही तो क्वेश्चन था. It's not oxide. Tell him we cannot talk about raw materials. We can talk about finished products. ओके. नहीं, थोड़ा सा अगर जानकारी भी दे देंगे तो यहाँ पे बनाने वाला तो है नहीं वैसे. नहीं, वो जिर्कोनियम ऑक्साइड तो वो कहाँ से उनको किसी ने बोला है, मुझे नहीं पता. बट वो प्रोडक्ट्स ही अलग होते हैं जो इन प्रोडक्ट्स में जाते हैं. दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. दे आर नॉट वेरी चीप प्रोडक्ट्स. और अगर ये जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं तो आई डोंट नो ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि ये गलत है कंटेक्स्ट. हम जब बोलते हैं फॉस्फेटिंग तो इट इज जिंक फॉस्फेटिंग, राइट? We don't say zinc oxide or zirconium oxide. So I think maybe he's a manufacturer. He's trying to find out which is the raw material. Maybe. सुबोध जोशी जी. Platform. सुबोध जोशी जी. हाँ जी, सुबोध जी, most welcome. बताइए. कोल्ड फोर्जिंग में. हेलो. Yes, please. कोल्ड फोर्जिंग में नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्या? कोल्ड फोर्जिंग में इस चीज के लिए सर? ये फोर्जिंग किया जाता है, गियर वगैरह बनाते हैं ना? नहीं, फोर्जिंग करने के पार्ट बनने के बाद आप प्री ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या क्या करना? नहीं, पहले प्री ट्रीटमेंट होती है, जिंक फॉस्फेटिंग होती है, उसके ऊपर सोप का कोटिंग होता है, बाद में फोर्जिंग होता है उसका. तो वो उसमें आप नैनो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको मैंने पहले भी एक प्रोडक्ट मैंने अपना दिखाया था. एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज. ये जैसे मेटाफॉस हमारा प्रोडक्ट है, इट्स अ वेरी हैवी कोटिंग प्रोडक्ट. तो आपको ये मेटाफॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको फ्रिक्शन है आपके पार्ट में. जब फोर्जिंग करेंगे तो फ्रिक्शन होगा. आप स्ट्रेच करेंगे, ट्यूब होगी या मेटल होगा उसको, करेक्ट है ना? तो उस केस में सर ये नैनो टेक्नोलॉजीज नहीं चलेंगी. अगर आप चला रहे हैं या कोई बोल रहा है अगर आपको मिसगाइड कर रहा है. Some industries will suffer this phenomenon of they cannot use nano technology. I'm sorry. ओके. और सर मुझे पूछना है और कि लो स्लज जिंक फॉस्फेट टेक्नोलॉजी है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल है. अभी जो मैंने सीडी के लिए भी बताया, लो स्लज है, उसमें ग्रीन ही रहता है सर टैंक. जब अभी हम कनेक्ट हो जाएंगे ईमेल से या फोन से, अभी मैं लास्ट में अपना ईमेल फोन शेयर करूंगा, तो व्हाट्सएप पे वी कैन शेयर यू, ईमेल में हम शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जरूर. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. वेलकम. तो CED और लिक्विड पेंट में if DFT is more than 180 microns, kindly confirm stripper process time to remove paint. Also confirm how many cycles chemical work. Manish, can we do this question later on? हाँ, चलिए सर. Let us finish this. Sorry. Everybody is waiting to hear it. Right? Okay. Sorry. ठीक है, अब क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे सारे, राइट? चलिए सर. ओके. अभी जो है now this technology Eclipse, which is used for aluminium, zinc and many other metals again. इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा है, पहले तो ये पूरी ग्रीन है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई स्लज नहीं है. नंबर 2, आप इसको चाहें तो नो रिंस भी कर सकते हैं. मतलब आपने प्री ट्रीटमेंट कर लिया Eclipse के साथ, डिग्रीजिंग किया और प्री ट्रीटमेंट Eclipse का किया, उसके बाद आप ड्राई कर दें उसको डायरेक्टली, नो नीड टू वॉश. तो आप अपना पानी बहुत सारा बचा सकते हैं. एंड
ये स्प्रे में, इमर्शन में, फ्लो कोट में, दिस कैन बी अप्लाइड इन मैनी वेज ऑन पार्ट्स, and this is approved in Europe by GSP, Qualicoat for pre-treatment and all that stuff. तो आपको Eclipse में कई सारे वर्जन्स हैं हमारे पास, Qualicoat approved भी हैं जो कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन पे यूज होते हैं, which will obviously give you paint life of 10 years, 20 years, now even working for 30 years. And mobile antennas है, alloy wheels है, coil है, coil coating है, general metal है, और आपका एक्सट्रूजन है. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारा अप्रूव्ड है, एरिक्सन है, जैसे वी आर अप्रूव्ड बाय मेनी कंपनीज इंक्लूडिंग एरिक्सन. Now Triclips is a trivalent film which is mostly used in coil, general metal, and extrusion is one of the main consumer of Triclips. So क्योंकि जो ये बाहर एक्सट्रूजन की स्ट्रिप्स लगी होती हैं बिल्डिंग्स के, या डोर्स विंडोज लगे होते हैं, इन पे हमारे को वेरियस कंडीशंस में होती हैं. ये कहीं पे स्नोफॉल भी होता है, कहीं पे सी साइड है, और कहीं पे दिल्ली जैसा एटमॉस्फेयर रहता है. तो जो सी साइड और स्नोफॉल वाले एरियाज हैं उनमें वी नीड अ वेरी हाई क्वालिटी सॉल्ट स्प्रे विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लोरिडा टेस्ट. तो उसके लिए ये यूज हो सकता है, ऑलरेडी यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड. चाइना में, कोरिया में, जापान में, यूएस में और यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होता है ट्राइक्लिप्स और इक्लिप्स एंड जिरकासिल आल्सो. सो ये हमारी सारी टेक्नोलॉजीज जो है बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है. अभी ये हम पुराना प्रोसेस देख रहे हैं कि वाटर गया फर्स्ट रिंस में, फिर सेकंड में, फिर कोटिंग हुआ. तो ये हम जो हीट करते हैं कोटिंग को, हमारे को इसमें हीट नहीं करना है. हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, ये ओल्ड प्रोसेस है जो हम ट्रेडिशनली अभी कर रहे हैं, क्लीन, रिंस, कोट, रिंस. और इसमें पुअर रिंसिंग होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, पानी बहुत लगता है क्रोम में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. जो नया सिस्टम है हमारा वो क्लीन, रिंस एंड Eclipse, and then you can dry the part. No need to rinse the part with water. तो आपका पानी का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है. और अगर आप देख रहे होंगे, water is going in and then it is moving from one tank to another tank. तो आप मतलब बेसिकली ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप टैंक फिल करेंगे तो वो आपका पानी लगेगा, उसके बाद आपका पानी एक ही टैंक का लगेगा, सारे टैंक का पानी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कास्केड करके जाता रहेगा आगे. करेक्ट. सो ये लो कंटेमिनेशन रहेगा इसमें, और इट विल गिव यू अ वेरी गुड प्री ट्रीटमेंट. सो हम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इंडस्ट्री सर्व कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल व्हीकल्स है, आर्किटेक्चरल प्रोफाइल्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स है, कॉइल कोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, फैब्रिकेटेड मेटल है, वायर ड्राइंग है, पावर जेनसेट्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्री के ट्यूबुलर पार्ट्स हैं. सो दीज आर द इंडस्ट्रीज we are serving. Then these are some worldwide customers we have. So like YKK, Delphi, lights वाले हैं, CNH है, Yamaha है, Tyco है, आपका Sanmina है, John Deere है, Whirlpool है. तो ये बहुत सारे इस टाइप के कस्टमर्स हैं. So BCI complies to the following specs जो मैंने पहले भी बोला. Qualicoat, AMA is American Association for extrusion, then GSB is UK, Austrian Lacquer Institute is in Austria, Europe. So Eclipse जो technology है ये पूरी approved है worldwide. These are the memberships we have: Wire Association International, National Coil Coating Association, Powder Coating Institute, AMA, Aluminium Extruder Council. So ये हमारे bulk chemical के कुछ association में memberships हैं जो कि पिछले 40-45 साल से हैं, क्योंकि 50-year-old company है ये. And every 8 cents is going for R&D. हर $1 में से 8 सेंट हमारे सेल्स रेवेन्यू में से R&D पे स्पेंड करा जाता है. और 22 पेटेंट्स हैं हमारे पास, और हम लीडर है क्रोम फ्री टेक्नोलॉजीज में, ड्राई इन प्लेस टेक्नोलॉजीज में. जैसे मैंने पहले भी बताया कि Eclipse जो है उसमें पार्ट्स ट्रीटमेंट करके आप नो नीड टू रिंस, कोई रिंस करने की जरूरत नहीं है. पार्ट को आपने प्री ट्रीट कर लिया अगर Eclipse में, सिर्फ ड्राई करिए और अपना पेंट पाउडर जो करना है आप कर सकते हैं. So we are the innovative, very innovative technology pre-treatments for E-coat, जो कि CED coat हम कहते हैं. और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पूरा सिस्टम है जिसमें डेटा हम एक्विजिशन कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी लाइन जो है अगर आप स्पेंड करेंगे वो पैसा तो आप फोन से चला सकते हैं अपने. So these are the technologies we are selling. So this is the confidence we have that we have the best
system which is chromium and phosphate free, even ammonia free. Heat to only one stage. आपको हीटिंग ही नहीं करनी, डिग्रीजिंग हीट करनी है, जिरकासिल हीट नहीं करना, इक्लिप्स हीट नहीं करना, ट्राइक्लिप्स हीट नहीं करना है. सो वेस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है, आपका ईटीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नॉन हैजार्डस प्रोसेस हो जाता है आपका. सो दीज आर द few major benefits I would say we are looking at, and we can provide you all these things whatever we have promised to you. Thank you for joining us. हमारे को ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद. और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये आप जो भी लोग मांग रहे थे डिटेल, अनुराग जी वो अपना कांटेक्ट का वापस लेके आइए. जी. आप में से जो भी अनुराग जी से आगे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दे कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. इवन आप कैमरा से अपने फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं. तो आगे आपको किसी को भी अनुराग जी से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. आस्था कोटिंग भिवाड़ी में है, इनका ऑफिस भिवाड़ी में है. तो आप में से कोई भी इनसे अगर बात करना चाहे तो हियर इज द कॉन्टैक्ट डिटेल. इसके अलावा मैं वही बात करना चाह रहा हूं आपसे कि आप पेंट विजन के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं. वी आर वेरी मच ग्लैड टू हैव यू विद अस. एंड अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. वी हैव जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट. हालांकि हम लोग ओवर टाइम चल रहे हैं, बट किसी का क्वेश्चन है. ओके, डॉक्टर आर बालोजी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन सर. हाँ सर, एक्चुअली in this pre-treatment अगर some means we have applied coating somewhere localized failure हुआ है and it has removed from the substrate itself. So फिर localized pre-treatment कैसे करेंगे? whole paint system we have to remove और वो एरिया में कैसे कुछ pre-treatment कर सकता है क्या? नहीं, which area sir, which area, which kind of part depends on that. any part, you can assume any part, but some means big part, something like silencer समझिए, and that some localized area से paint. कोई टचिंग हो जाती है जैसे पार्ट टू पार्ट, वहां पे रह जाता है. ओके, बट रिमेनिंग व्हाट एवर द रिमेन ऑर्गेनिक कोटिंग और पाउडर कोटिंग अगर लगाया रहेगा वो एरिया में, बगल जगह में. नहीं, मेरा क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या वो टचिंग हो जाती है आपस में दो पार्ट्स में और प्री ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, या क्या रीजन? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. अगर समझो आई हैव सम पार्ट ऑन दैट प्री ट्रीटमेंट करके आफ्टर दैट पाउडर कोटिंग लगाया और सम अदर कोटिंग पॉलीयुरेथेन और कुछ कोटिंग लगाया, सो ड्यू टू मैकेनिकल इंपैक्ट और सम डैमेज वो कुछ एरिया से लोकलाइज्ड फेल्यूर डैमेज हुआ. एंड दैट पेंट, आपका पेंट को लोकल फेलियर हो गया उस एरिया में. सो टचअप के लिए मैं बोल रहा हूँ, टचअप वो एरिया में टचअप नॉर्मल पेंटिंग हम कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द प्री ट्रीटमेंट, वो बोल रहा हूँ आपका जैसा ये बोल रहा हूँ. एक्चुअली देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से करते हैं. कोई स्प्रे टचअप लगा देता है, कोई उसको उस एरिया को हल्का सा पॉलिश कर लेता है, कोई ग्राइंडिंग हल्का सा करके, मतलब विथ एब्रेसिव पेपर हल्का सा लगा करके भी दोबारा पेंट कर देता है उस एरिया को. डिपेंड करता है वो पार्ट कितना क्रिटिकल है, उस वो कहाँ पे जाके यूज होगा. ओके, depends on that. राजेश गावड़े, We can guide you. Our details are here. हम इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप चलता है, ईमेल हमने मेंशन कर ही दिया है. पर्टिकुलर जानबूझ के मैंने कैप्स लॉक में शेयर किया है कि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो. और कभी कभी होता है कि आदमी पिक्चर लेता है तो वो कभी क्लियर नहीं आती है. तो मैं राजेश गावड़े जी, हेलो, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन दूंगा सर. राजेश गावड़े सर. सर गुड इवनिंग, राजेश गौड़े बोल रहा हूँ सर. अनुराग जी बहुत ही बढ़िया ये दिया है, क्योंकि आपने इसमें इन्वेंट्री कम होगी, स्पेस कम लगेगा, स्लज जनरेशन कम होगा, इको फ्रेंडली रहेगा, टेम्परेचर भी कम रहेगा. अब मुझे इसमें सिर्फ इतना पूछना था, ये नैनो कोटिंग में आरए वैल्यू क्या आती है? मतलब अपना जो पेंट चिपकने के लिए जो आरए वैल्यू चाहिए, आरए वैल्यू तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना. एचआर है, एमएस है, क्या है, वो तो मेटल का आरए वैल्यू रहेगा. नहीं, कोटिंग का आरए वैल्यू भी डिपेंड करता है ना पेंट के एडिशन के ऊपर. इट्स ऑलवेज मेटल आरए वैल्यू. दैट इज ओके. मेटल के ऊपर अब आप जब कोटिंग लगा रहे हैं, मेटल के बाद अगर आपने प्री ट्रीटमेंट कर दिया या पेंट कर दिया तो आरए वैल्यू कहां से निकालोगे आप? देयर इज नो आरए वैल्यू रिमेन्स ना. वो तो पेंट हो गया पार्ट या प्री ट्रीटमेंट हो गया. तो आरए वैल्यू आपका लेस देन 2 ही होना चाहिए वैसे.
less than 2 or roughly 8? Sorry, Because less than 2 we are finding paint peel off. less than 2 paint Less peel off than तो 8. Less than 8. If there is less than 8, then there is a paint peel off. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पेंट पील ऑफ नहीं होगा, उतना ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा जाएगा, 4-5 जाएगा तो पेंट तो गड़बड़ होगा ही ना। सेकंड क्वेश्चन इज प्लास्टिक के लिए आपने कुछ नैनो का डेवलपमेंट किया है क्या? Actually, plastic के लिए we have a partner known as Hubbard Hall, and there's a good news that Hubbard Hall has taken over one company 2 years back. Now the company merger is already done, which is known as Torch Chemicals. Torch like a torch light वाला torch. तो आप Torch Chemicals देख सकते हैं, and I can help you with getting the products. वो हम आप इंडिया में शुरू करेंगे उसका सेल अभी प्लास्टिक के लिए. They have a very good plastic pre-treatment. अभी so far we don't have. करंटली आप देखेंगे तो 60-65% पार्ट्स ऑटोमोटिव में प्लास्टिक के हैं। हाँ, अभी ईवी में बहुत ज्यादा हो गया ना, ईवी में तो सारा ही प्लास्टिक है, कुछ बचा ही नहीं है। EV तो है ही, और मेटल तो बहुत कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ हाँ, आपका एनर्जी सेविंग के लिए। बट अभी देखो ईवी का फ्यूचर क्या है वो भी हमें नहीं पता है। नहीं, फ्यूचर तो सबका ब्राइट है सर, आपका ब्राइट है तो सबका ब्राइट है। नहीं, वो नितेश जी आज द क्वेश्चन सर, मुझे हमारे टाइम थोड़ा सा टॉर्च लग गई है ना साथ टाइम में, का इसलिए। मैनेजमेंट करना है सर। राजेश जी, नितेश जी आज द क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, हमारा सीट मेटल का प्रोडक्ट है जी, और उसको प्री ट्रीटमेंट डिपिंग लाइन है सर। तो ठीक है। उसमें से जो सीट मेटल का कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जो जहाँ एक दूसरे से चिपक जाता है। हाँ, आता है, मार्किंग हाँ आती होगी वहां पे, वही मैं पूछ रहा हाँ था, पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी उनसे। हाँ, तो उस कारण से वहाँ प्री ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर कैसे मैनेज करेंगे सर? देखिए, या तो आप अपना हैंगिंग का स्टाइल चेंज करिए पार्ट्स का, तो ये तरीका है। अगर वो टाइम नहीं है तो फिर हमारे से आप बात करना, वी कैन गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज वी हैव डिफरेंट कोटिंग्स व्हिच विल, वो वहां भी पहुंच जाएंगी, क्योंकि उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का फॉस्फेट चाहिए रहेगा, वी कैन सप्लाई दैट। जी एंड जी, सॉरी अनम्यूट कर लीजिए, नितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, he has some question I think। हाँ नितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके जी जी, बोलिए, जी बोलिए। सर वन मोर क्वेश्चन कि हमारा जो ये सीट मेटल का जो कंपोनेंट है बेंडिंग किया हुआ रहता है, तो बेंडिंग में जो इनर पार्ट है जहां पर अगर हम डिपिंग करते हैं उसमें एयर तो पॉकेट बन जाती उसके होगी। इनर, हाँ एयर एयर पॉकेट पॉकेट बन जाती है। मुझे पता है सर, हाँ आप क्या पूछ रहे हैं। आप इलेक्ट्रिकल पैनल इंडस्ट्री में हो क्या? नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है डीजल जनरेटर सेट है। हाँ हाँ, मेरे पास हमारा सबसे बड़ा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है वो हमारा ही कस्टमर है 25 साल से, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट आल्सो। तो आप मेरा मेरे ख्याल ईमेल से आईडी नितिन जी अगर आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करें और वो कोई बेटर है, प्रोडक्ट के क्योंकि बारे में इस दे तो प्लेटफॉर्म वो पे ज्यादा डिफिकल्ट होगा बेटर, सारा अच्छे से आपको नॉलेज मिल पाएगी शायद। हाँ, आप जी जी संजीव जी से भी बात आप कर लेकिन सकते आप हैं। अनुराग जी इनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, हो सकता है ऐसे और भी हमारे सर हो लोग सकता है, हैं। वो हो सकता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, बट वो तो प्रोसेस देखेंगे तो हम कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। इधर ओवर दी वीडियो नहीं होगा, उसका वीडियो ही देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली हमारे को, कैसे क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है इनका। जी 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 जी, तो हरि अगर प्रताप हम जी, आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करें तो क्या आप इसका कुछ सॉल्यूशन दे पाएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जी जी हरि ओके सर, प्रताप थैंक जी, यू। हाँ जी, कोई फेलियर भी नहीं होगा अंदर। हरि मैंने प्रताप आज तक जो है ना कम से कम 4-5 लाख कैनोपी कर दी है। हरि प्रताप जी। हाँ हेलो। जी हाँ जी, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने बोला है ना रिमूवर, पेंट रिमूवर, ये क्या इको फ्रेंडली है? कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा इसका? नहीं ये ईटीपी में ही जाएगा, इम्पैक्ट ह्यूमन को ऐसा इम्पैक्ट नहीं करता। नहीं, एटीपी के लिए जैसा हेड वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना? आप भी बता रही है एसिड बेस है या कैसे है मतलब? नहीं सर, एसिड बेस नहीं है ये, और दिस इज नॉट एसिड बेस, इट्स ए अच्छा, सॉलिड बेस। जी 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 ठीक जी। है। दूसरा ये पर्सनल क्वेश्चन है था, अगर मैं आप सप्लाई पेंट पीटी कोस्ट का वो था, वो अगर मैं यूज करूं, मैं एज ए प्लांट, ये जलसाना प्लांट हेड हूँ, तो आप पीटी का कोस्ट क्या जनरली कितना पर मीटर स्क्वायर है? ये प्लेटफॉर्म जो है ना, अभी हमने सिर्फ गाइडेंस के लिए खोला है, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। आप मेरे से डायरेक्टली बात करिए या संजीव जी से बात करिए, वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन, सारे को जवाब देंगे सर, आप चिंता मत ओके। करिए। डॉक्टर गौरव, गुड इवनिंग। बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप।
नहीं बस सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सुनते थोड़े हुए। थोड़े क्वेरीज हैं मार्केट की। अरे आप हमारे सीनियर है भाई, आप नहीं गाइड करिए। इट वाज नहीं सब काफी देर से आपको सुन रहे हैं हाँ, और it's ही इज very वेरी मच हैप्पी। and he is very attentive in listening me and smiling also. डेफिनेटली। नहीं, एक क्वेश्चन और है सर, queries ये हैं। नाम नहीं आ रहा है इनका, सैमसंग A125F है, मैंने इनको अनम्यूट के लिए बोला है, जी। प्लीज आस्क द क्वेश्चन, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो जी बोलिए। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम श्याम बाबू है सर, मैं होसूर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? एक्चुअली ना हम होसूर, बेंगलोर, नियर बाई बेंगलोर। जी सर जी हम ना एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का पार्ट यूज करते हैं, ये मेटल ADC 12 है, राइट। तो हमें इसमें पिन होल का इशू आता है। आप एक काम करिएगा कि हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप करिएगा, जो भी पिक्चर है, जो भी पार्ट है, आपको वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और हमारा एक इंजीनियर उधर रहता है उस एरिया में, ही कैन मीट यू। बेसिकली क्या रीजन रहते हैं इसके ज्यादातर? सर प्री ट्रीटमेंट इज अ मेजर रीजन, पेंट के भी अपने रीजन होते हैं, प्रोसेस के भी हाँ। होते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा वो है। इट्स अ ब्लेंड, बेसिकली मिक्स है। श्याम जी, आपका आपका प्रॉब्लम कौन सी कोटिंग में आता है? क्या कोटिंग करते हैं आप? सर लिक्विड कोटिंग है। कौन सी? स्टोविंग है, ए, PU है, इपॉक्सी है, क्या नहीं है? सर, ये इपॉक्सी है। एपॉक्सी है। हमारे साथ वैसे लिक्विड कोटिंग के मैं बोलूंगा कि बहुत जबरदस्त टेक्नोक्रेट भी है, डॉक्टर गौरव। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो न्यूज़पेपर है पेंट विजन, अभी हम लोगों को एक सीरीज भी हम लोग दोबारा से रिपीट कर रहे हैं पेंट डिफेक्ट की, जो पेंट विजन के न्यूज़पेपर में हम लोग डाल रहे हैं। आप अपना नंबर भी शेयर कर लीजिएगा तो आपको न्यूज़पेपर भी पहुंचता रहेगा। उसमें वेरियस लगभग 65 के आसपास पेंट डिफेक्ट है, जिसकी पूरी सीरीज हमारे न्यूज़पेपर में छप रही है। कुछ जा थैंक चुके यू हैं, सो ये मच दोबारा सर। रिपीट हो रही है। आप तो अपना इसमें आप अपना डॉक्टर जरूर गौरव शेयर ने करिएगा। इसमें काफी हमारी हेल्प की है, क्योंकि वो सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर गौरव ने ही उसके कारण और सॉल्यूशंस बताए हैं। तो अनुराग जी, इफ यू डोंट माइंड, इसका आंसर अगर डॉक्टर साहब से पूछे तो? हाँ, डॉक्टर साहब से पूछिए ना, मैं तो आई वुड लव टू हियर हिम। हो गए 6 महीने सुने मैंने, 4 महीने। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए सर, बताइए सर, ये जो पिन होल का बता रहे हैं, ये एपॉक्सी में पिन होल का क्या कारण हो सकता है? नहीं, इसमें दो चीजें बहुत क्लियर करना जरूरी है। आपका जो आपने बोला एल्युमिनियम डाई कास्टिंग है, राइट? सबस्ट्रेट जो है वो एल्युमिनियम डाई कास्टिंग का है। हाँ जी सर। ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए, जब आप प्री ट्रीटमेंट करके अपना पीस बाहर निकालते हैं कोटिंग से पहले, हाँ जी। तो उसमें आपने कभी सरफेस उसकी फिनिश चेक की है? वहां पर कोई पिन होल किसी तरीके का कोई ऑब्जर्व होता है? नो सर, ये विजिबल नहीं है, नेक्ड आई से देख नहीं सकते आप। नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होता है, राइट? हाँ, विजिबल नहीं देन है। जब आप उसके ऊपर आप जब उसके ऊपर लिक्विड पेंट करते हैं, राइट? हाँ जी। लिक्विड पेंट करते हैं तो आपको वहां पे पिन होल्स मिलते हैं। हाँ, पिन होल मिलते हैं। सो आप श्योर हैं कि वो पिन होल्स हैं या वो क्रेटर्स हैं? और सर ये जो पिन होल है ये लोकलाइज है, कुछ एरियाज में आता है, जैसे हमारा अभी रियर ग्रिप चलता है TVS का, उसमें ये नहीं हमारा कुछ। देन देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपका ये पिन होल्स होगा ना, तो पिन होल्स थ्रू आउट द सिस्टम होगा, बिकॉज पिन होल्स इज जनरेटेड फ्रॉम द फोम जनरली। ओके। देखिए, पिन होल फोम से बनता है, और क्रेटर जो है वो आपको लोकलाइज्ड होता है कि कहीं कहीं पर अगर इंप्योरिटी सरफेस में होगी, जैसे अगर आपका डाउट है कि मेरा प्री ट्रीटमेंट में कहीं कुछ इश्यू है, तो वहां पर आपको लोकलाइज्ड अगर इश्यू होगा तो वहां पर हो सकता है आपको मिले। इसमें आप क्या करिए, अपने लिक्विड पेंट के अंदर सरफेस, आप लिक्विड पेंट बनाते हैं या किसी का लेके यूज करते हैं? सर हम लेके मिक्स मुझे करके यूज कंपनी का करते नाम हैं। नहीं जानना, आप सिर्फ ये बता दो कि आप किसी का लेके यूज करते हो। हाँ, लेके यूज करते हैं सर। लेके यूज करते हो। आप अपनी कंपनी वाले को बोलो कि जब आप उस पे स्प्रे करते हो ना, तो लोकलाइज्ड पिन होल्स नहीं, आप बोलना लोकलाइज्ड क्रेटर्स जनरेट होते हैं। ओके। आप उनको बोलना क्रेटर जनरेट हो रहा है, पिन होल्स बोलोगे ना तो वो दूसरा प्रोडक्ट डालते रहेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है अब सर। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, इसलिए मैं अभी ग्रेड नेम्स ओपन नहीं कर रहा हूं, वो उनका ओके। मैन्युफैक्चरर के पास रहने दो। अगर आप पिन होल बोलोगे तो अलग चीज आएगी, और अगर आप क्रेटर बोलोगे तो अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब दो अलग अलग दवाएं हैं, दो अलग अलग बीमारियां हैं, ये देखने में एक जैसी लगती हैं। प्री ट्रीटमेंट भी एक प्रॉब्लम हो सकती है गौरव साहब इसके लिए। देखिए, मैंने पहले बोला, अगर प्री ट्रीटमेंट आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो प्रॉब्लम में, तो आप फिर कोटिंग वाले से एक बार बात करो।
ठीक है। अगर आपका कोटिंग वाला ये कहता भाई अब इसके बाद मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम मेरा लो या नहीं लो, आई डोंट केयर, तो फिर आप ये समझ लो आपकी प्रॉब्लम प्री ट्रीटमेंट में है। तो दोनों एक बार चेक कर लो। आई एम शोइंग यू वन इंस्ट्रूमेंट, आप उस इंस्ट्रूमेंट को अपने घर में खरीद लो। 4-5 हजार रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, मैक्सिमम ऑनलाइन आता है। तो आपका जहां पे आपको इस तरीके का इश्यू आ रहा है ना, वो आप जूम आउट करके देख सकते हो। ये 200 डिग्री से लेकर 200 जूम से लेकर के 500x जूम तक जाता है। डॉक्टर साहब शेयर करना है क्या? स्क्रीन शेयर करना है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, ये देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक माइक्रोस्कोप है, हैंडी माइक्रोस्कोप है, वायरलेस माइक्रोस्कोप है, ब्लूटूथ से चलता है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप ले लीजिए। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि ये चलेगा आईपैड के साथ में। इसके और भी वर्जन आते होंगे जो अलग अलग उनके संग में चलेंगे। तो आप कोई भी इसके थ्रू आप किसी भी तरीके की कोटिंग को जो है 600x टाइम जूम कर सकते हो। ओके सर। तो इसका आप ये इसके कौन अंदर सा जो ब्रांड कौन सा है ऑनलाइन ये सर? मिलता है, ये ऑनलाइन मिलता है, चाइना मेड है। देखो ये सारी चीजें अब चाइना से आती हैं, जर्मनी वाली तो हम खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, जर्मनी की खरीदने जाता तो मैं 3-3.5 लाख रुपए इस इंस्ट्रूमेंट के देता। एग्जैक्टली। ठीक है ना, ओके चाइना सर। वाला ने मुझको 4,500-5,000 रुपए में उस टाइम पे दे दिया मुझको ये इंस्ट्रूमेंट। अभी बहुत से तरीके के इसके अंदर भी वर्जन आ गए होंगे, हो सकता है कोई 1000x जूम तक भी जाता हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मिलता है, अमेजन पे, इन सब पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, सर्च करो वैसे मिल शेयर जाएगा। करना है सर। उसमें से कोशिश ये करिएगा कि जो प्रोडक्ट आपको जिसके रिव्यू सबसे अच्छे हो वही लेना। महंगा ओके होगा तो भी, सस्ते के चक्कर में मत जाना, उसमें आप महंगा मंगा लेना। ओके और सर। जिसमें रिटर्न पॉलिसी हो, जिसमें इंस्ट्रूमेंट अगर ना चले तो रिटर्न पॉलिसी हो, वो वाला लेना कि भाई आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 15 दिन का विंडो मिलता हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट आए और 15 दिन तक आप रिटर्न कर सकते हो, वैसा लेना। ठीक है, मैंने जो लिया था मैं उसका नेक्स्ट वाली जब मीटिंग होगी तब तक मैं ढूंढ के रखूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, नॉट एन इश्यू। ओके सर, थैंक यू। इन द मीन टाइम आप हमारे सर 82 जी सर नंबर शेयर किया मैंने आपने शेयर चैट किया? बॉक्स। हाँ जी सर, चैट बॉक्स में शेयर किया। और मीन टाइम आप क्या करिए, जब आप अच्छा, हॉसूर में होइए और अनुराग जी के 824871030033। यस सर। ठीक है सर। देखिए, मीनवाइल आप हॉसूर में हो बैठे हुए, एंड हाँ जी सर। आपका अनुराग जी के सेल्स पर्सन वहीं पे है, सेल्स पर्सन और टेक्निकल पर्सन, आई एम नॉट श्योर। तो आप क्या करो, एक तरफ आप प्री ट्रीटमेंट से तो श्योर हो जाओ ना, अनुराग जी के पर्सन है वहां पर। तो अगर आपका ओके प्री ट्रीटमेंट में कोई इश्यू होगा तो वो पहले यहीं पे बिफोर हैंड खत्म हो जाएगा। फिर आपको ओके श्योर हो गए ना पेंट वाले से कहने के लिए, वरना पेंट करेक्ट से सर, आप कहने जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, वो हमेशा ये बोलेगा यार तुम्हारे प्री ट्रीटमेंट टैंक में इश्यू है, हाँ प्री वो यही ट्रीटमेंट बोलेगा केमिकल में पेंटिंग इश्यू है, तुम्हारी पेंटिंग। लाइन में इश्यू है, XYZ दे आर नंबर ऑफ। तो आप उससे अच्छा है प्री ट्रीटमेंट की तरफ से ओके हो लो, बोलो नहीं मेरा प्रोसेस सही है, सब कुछ सही है, अब आप अपने पेंट की बात करो। ओके सर। ठीक है, ये गनदीप सिंह जी का भी थैंक यू। क्वेश्चन यही था, उन्होंने खैर आंसर आ गया। चलिए आज का जो हमारा ये प्रेजेंटेशन कह लें, वेबिनार कह लें, आज हमें यहाँ पे हम वी आर क्लोजिंग इट। और जैसा हमारा रिवाज रहता है, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमारा एक रिवाज रहता है सर कि जो जी गौरव सर बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी जी अनुराग जी, मेरा जो ये सवाल था ना, जो पाउडर कोटिंग प्री ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, वो मेरा ही क्वेश्चन था। जी जी। इसमें आई हैव रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय ओवरसीज कलीग्स ओके that they are going for some nano zinc oxide based pre-treatment coatings. Okay. In yes, nano. The word term missing here is the nano, because I don't want to open that. Okay, so nano zinc oxide based coating and zirconium oxide based pre-treatment. So उनका मेरा जस्ट क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से अगर मैं इको वाइज के अकॉर्डिंग देखो, एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी में तो मुझे मालूम है कौन सा बेटर है। मैं इको वाइज के टर्म्स में आता हूं कि सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं तो दोनों में से कौन सा प्री ट्रीटमेंट बेस्ट होगा? Zirconium is better. Zirconium is better. थैंक यू। बस मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने मनीष जी क्या बोला था, कोई फॉर्मूले वाले वो बंदा पूछ रहा है, गलत नहीं बोला मैं समझ गया था कोई टेक्निकल बंदा है, भाई छुपे बैठे थे तब तक मुझे नजर नहीं आ रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के प्रेजेंटर के लिए, अनुराग कनौजिया जी एस्ट्रा कोटिंग लिमिटेड से।
वी प्रेजेंट देम एक जोरदार तालियों के साथ में। Thank you so much. सब dear. आप अपने आप को अनम्यूट भी कर I सकते really हैं, वी appreciate. ओपन द ऑप्शन। I really appreciate. Thank you so much. Thank you. Thank एंड you. आपको दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सैटरडे को एक बहुत जबरदस्त नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लोज करने जा रहे हैं। Thank you. Bye bye. Thank you.